अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। Sir, thank you very much for giving us this opportunity to learn about the subject. Thank you for giving me this project. My project name is Optical Properties of the Colloid, and my name is Amir Ijaz, MPhil Physical Chemistry second semester. My roll number is PCHF 20E070, and I'm recording on the behalf of Professor Dr. Imran Irfan. So thank you, sir, for giving me chance to learn about this course. जी स्टार्ट लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मेरे टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स। जी सबसे पहले हम कंटेंट्स को देखें तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं इस असाइनमेंट के दौरान, उन कंटेंट्स में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स हैं। इसके बाद कोलॉइड्स एग्जिबिट टेंडल इफेक्ट, इस पे बात करेंगे हम। थोड़ी सी डिस्कवरी के ऊपर भी हम बात करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेंडल इफेक्ट के ऊपर बात होगी। देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द टेंडल इफेक्ट. We have got a lot of example of this Tyndall effect. We'll talk about this, and then we are going to discuss about the true solutions and suspensions that do not show the Tyndall effect. We will see why this phenomena do not hold for the true solutions and suspensions. Then we will have a comparison between Tyndall effect and Rayleigh scattering. And then we are going to discuss what are the applications of the Tyndall effect. And this is another important area regarding my this project. We are going to discuss ultra microscope that shows of the presence of individual particles. This is another optical property of the colloids. And then lastly, we are going to discuss about the colloids particle can be seen by electron microscope. This is another important feature of I would like to say that it is optical feature of colloids. These are the contents that we are going to discuss in details, inshallah. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ रखा है कि मुख्तलिफ साइजेस रेंजेस में हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, और उन रेंजेस में एक रेंज आती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. दिस रेंज इज टेकन एज कोलॉइड्स. इसको हम कोलॉइड्स बोलते हैं. अगर आप इस रेंज से नीचे चले जाएंगे जहां पे पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो ट्रू सॉल्यूशंस में आ जाएंगे. एंड इफ वी प्रिपेयर सॉल्यूशन इन द रेंज ऑफ मोर देन 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज, then they are said to be suspensions, bit larger in size than the colloids. So colloids lie in between the true solutions and suspensions. These have got a lot of important properties, features, and applications. They are very important in the context of various vital and fruitful examples. ओके, देन अगर हम नाम को देखें तो यहाँ पे ऑप्टिकल का लफ्ज आ रहा है. ऑप्टिक्स जो होते हैं ना, उनका ताल्लुक होता है देखने से, नजर आने से, या रोशनी से, या हम कह सकते हैं कि आंख से. तो हमने ऐसी प्रॉपर्टीज देखनी है कोलॉइड्स की जिनका ताल्लुक या तो रोशनी के साथ होगा, या कभी कभी उनका ताल्लुक देखने से होगा, बसारत से होगा. ठीक है जी. तो वी आर गोइंग टू डील
light interaction with the colloids particle. This is all about my this project. Okay, first of all, here is heading number one, that named as colloid exhibit Tyndall effect. This is very first optical property of colloids. Now, what happens in the Tyndall effect and what is Tyndall effect? It is basically named on a scientist, on a physicist, John Tyndall. We will discuss about details about John Tyndall, but ये जो Tyndall effect है, ये एक फिजिस्ट के नाम पर रखा गया है, Tyndall effect. अच्छा, ये होता क्या है? जब आप लाइट बीम को फोकस करते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, जिसकी रेंज होती है नॉर्मली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान, तो जब आप लाइट को वहां पे फोकस करवाएंगे उस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो लाइट को डिस्पर्स कर देगा, स्कैटर कर देगा, और उस स्कैटरिंग के नतीजे में आपके पास लाइट जो है वो फैल सी जाएगी, एक कौन सी बना देगी। जिस तरह टॉर्च अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें तो वो हमें एक कौन सी बना के देता है। ये जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं Tyndall इफेक्ट, एंड दिस Tyndall इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइड सिस्टम, कोलाइडल सिस्टम। ओके, ये हमें पता चल गया। याद रहे कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशन करनी है Tyndall इफेक्ट की, ये हमने 90 के एंगल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है टू द लाइट, जो कि आप लाइट के रास्ते में अगर आप 90 डिग्री के व्यू करेंगे तो वो आपको Tyndall इफेक्ट शो करेगा। अगर आप पैरेलल व्यू करेंगे तो हो सकता है आपको Tyndall इफेक्ट ऑब्जर्व ना हो। तो we are going to have a side view, a perpendicular view, in order to analyze or see this Tyndall effect. It is named, as I said earlier, it is named after the 19th century physicist John Tyndall, who discovered and studied this phenomena for very first time. We will discuss it in detail later on, inshallah. Okay, next heading is why this happens. आखिर क्या होता है कि जब हम लाइट को कोलाइड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वो जो लाइट बीम है that scatters. Okay, the soul particles absorb light energy and then emit it in all directions. This redirecting of visible light is known as colloidal dispersion. Okay, यहाँ पे जो बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा तो वो लाइट उसके ऊपर अगर आप पड़ेगी तो वो उसमें से पास हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगी। देयर विल बी नो phenomena of scattering or dispersion of light. So you will see no light being scattered as a result of shining over a transparent solution. But what happens in the case of this colloidal solution is when you show or when you fall light on these particles that are in colloidal range, that particle absorb this light and spontaneously and at the same time they redirect it in all directions. That is bit different from the transparency or light that is only passing through the solution. So ये जो वेरियस डायरेक्शन में रीडायरेक्टिंग ऑफ लाइट है, दोबारा जो लाइट फैल रही है, इस फिनोमिने को हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये उसी वक्त हो रहा है ना कि कुछ देर बाद। और याद रहे कि यहाँ पे कुछ जो लाइट है उसके कलर में भी चेंज आपको नजर आएगा जब ये डिस्पर्स वगैरह होगी, ठीक है जी, हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, इसके बाद when light is passed through the colloidal solution due to the Tyndall scattering, or no, this scattering is known as Tyndall scattering. Why Tyndall scattering? Because this phenomena was studied by Tyndall
Johann Tyndall for very first time. Hence, it is named as that scientist's name. The path of light appears to be bright cone called Tyndall cone. नो आपने मुख्तलिफ तस्वीर की शक्ल में देखा होगा इस फिनोमेना को, जब लाइट उस सॉल्यूशन से पास करके आगे निकलती है, डिस्पर्स होकर निकलती है, तो वो एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेती है. उस कोन को हम टैंडल कोन कह रहे होते हैं और उस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं टैंडल इफेक्ट. सो this is how we can understand the Tyndall effect. So now we move to the discovery of this very wonderful and important concept. कैसे ये डिस्कवर हुआ? अच्छा, जो जोहन टैंडल था ये बेसिकली काम कर रहा था लाइट की एब्जॉर्प्शन पे, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये काम कर रहा था और ये लाइट एब्जॉर्ब करवाता था. उन मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब करते थे और उसकी इमिशन को ये स्टडी कर रहा था. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना था जिसको ये स्टडी कर रहा था. तो हुआ कुछ यूं कि जब ये इस पे काम कर रहा था तो इसको जरूरत थी कि जो ये स्टडी कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, वो जो है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में सैंपल हो, उसमें एयर ना हो या ऐसी एयर ना हो जो डस्ट फुल हो, जिसके अंदर ज़रात हो, अनडिजायर्ड अनवांटेड पार्टिकल्स हो. तो इस पहली बात तो ये है कि उसको ये पता कैसे चलता था कि मेरे सैंपल के अंदर गैस है, अनडिजायर्ड गैस है, अनडिजायर्ड एयर है, और सबसे बढ़कर कि उस एयर के ऊपर जो है वो क्या नाम है कि डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो इसको ये जो पता चला, ये इसको पता चला बाय शोइंग लाइट ऑन द सैंपल दैट ही वाज ट्राइंग टू स्टडी. ओके, तो जब इसने शाइन किया और राइटर लिखता है कि इसने चाहा कि मैं डिटेक्ट कर पाऊं कि डस्ट पार्टिकल मेरे सैंपल के अंदर हैं या नहीं, तो इसने लाइट की बाथिंग की. Here is written as the best way to detect these particulates was to bath the air in intense light. तो जब वो, उसके कहने का मतलब है कि जब वो इंटेंस लाइट उस सैंपल के ऊपर फॉल करवाता था और उसकी सफाई करता था, तो उससे उसको पता चल जाता था कि आया कि इसके अंदर. और वो क्यों पता चलता था? क्योंकि वहां पे टैंडल इफेक्ट का फिनोमेना जो है वो यहाँ पे हो रहा होता था. ओके, मूविंग ऑन. In 1860, Johann Tyndall did a number of experiments with the light shining beams through the various gases and the liquids and recorded the results. In doing so, Tyndall discovered that when gradually filling the tubes with the smoke and then shining the beam of light through it, the beam appeared to be blue from the sides of the tubes but red from far end. This observation enabled Tyndall to first propose the phenomena which would later bear his name. Gee, what a wonderful phenomena he discovered. Absolutely. जी, उसके कहने का मतलब ये है, just for explanation, I know that you would understand whatever I said early on, but just for explanation and to fulfill my duty, I would like to repeat in Urdu कि हुआ कुछ यूं कि वो जब वो गैशियस और लिक्विड सैंपल स्टडी कर रहा था, तो उसने देखा कि जब वो स्मोक को फिल करता है उस ट्यूब के अंदर, उस सैंपल ट्यूब के अंदर, तो वहां पे रेडिश कलर उसे नजर आता है फ्रॉम द साइड व्यू, फ्रॉम द परपेंडिकुलर व्यू टू द लाइट पाथ. लेकिन जब वो फार एंड से देखता है, मतलब कि जब वो लाइट के रास्ते में देखता है उस ट्यूब को, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही, जब वो पैरेलल देखता है तो उसको रेडिश कलर नजर आता है. इट मींस देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इनसाइड द ट्यूब दैट्स हैपनिंग. तो हुआ ये कि वो जो स्मोक था दैट वाज इन द कोलाइडर रेंज, और उस वजह से लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई, रीडायरेक्शन हुई और टैंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया. तो यही वो फिनोमेना था जिसने टैंडल को शोहरत की बुलंदियों पे और पहुंचा दिया, और उसका एक बड़ा नाम उभर के सामने आया इस फील्ड में, इस एरिया में. सो दिस इज हाउ द टैंडल इफेक्ट, दिस इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ कोलाइडल was discovered in 19th century. Okay, next heading is applicability of Tyndall effect. This is very important in the
in the context of which particles are going to show the Tyndall effect and which are going to show this phenomena? Absolutely not. Okay, absolutely is very, I would like to say, notorious in these days, so I'm using this absolute word, uh, although it is very good word. Applicability of Tyndall effect. Okay, the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used. This is very important point. इसका मतलब ये है कि अगर आप Tyndall effect शो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको जो पार्टिकल्स रखने पड़ेंगे कोलाइड के, उनका साइज इतना छोटा नहीं होना चाहिए। कितना छोटा नहीं होना चाहिए? जो आप लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं, मतलब कि विजिबल लाइट। रिमेंबर दैट Tyndall effect is only going to be absorbed when you fall visible light on your sample, on your colloidal sample. Otherwise it is not possible. Something else will happen if you use another part of the spectrum. Okay, तो ये हमें बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टिकल्स हैं, आपका जो कोलाइड है, उसके जो साइज, उसके पार्टिकल का जो साइज है, that shouldn't be much smaller than the wavelength of the light you are using for this phenomena. This is important. We have to remember this point. Let me explain this in other words. If you keep the particle size very small as compared to the wavelength of the light, what will happen? Another phenomena named as a Rayleigh scattering will be observed rather than this Tyndall effect. So this is important to remember this point. Okay, number two condition for the phenomena of Tyndall effect is the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium must differ greatly in the magnitude. क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड है in the dispersed phase and dispersion medium, मतलब ये कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, फर्ज करें आपने बना लिया सोप सॉल्यूशन दैट लाइज इन द कोलाइडल रेंज। अब ये जो सोप से प्योर सोप जो है सॉल्यूशन, उसमें से लाइट की स्पीड कितनी है, और जिस सॉल्वेंट में, पानी में, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में लाइट की स्पीड का फर्क बढ़ता जाएगा तो ये जो फिनोमिना है ये डोमिनेंट होता जाएगा, ये विजिबल होता जाएगा, और ये यू कैन से दैट ये मोर ऑब्वियस होता जाएगा। अदरवाइज जो है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, लाइट की स्पीड ज्यादा तब्दील नहीं होगी, तो उससे जो हो सकता है कि आपके पास या तो Tyndall इफेक्ट शो ही ना हो या बहुत कम इंटेंसिटी से हो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? और इसके पीछे को हमारे पास सपोर्टिव नॉलेज है कि ऐसा क्यों होता है? जी है हमारे पास। अच्छा, हो क्या रहा होता है? लेट्स सी। The intensity of scattered light depends upon the difference in the refractive index of dispersed phase and dispersion medium. Larger the difference, greater will be the intensity of scattered light. As I said earlier, that is the same. Okay. अब हमारे पास जो इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड है वो ये है कि जो आपके पास हाइड्रोफोबिक सोल्स या कोलाइड्स होते हैं, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स between the dispersion medium and dispersed phase that is more obvious, that is dominant, or in other words, there's great difference between a refractive index of dispersed phase and dispersion medium for the case of hydrophobic sols. तो यहाँ पे जो आपके पास Tyndall effect observed होता है, that is pretty much dominant, pretty much visible. Okay, यहाँ पे very intense you can say कि वहां पे ये ऑब्जर्व होता है। लेकिन जो आपके पास हाइड्रोफिलिक सोल्स या कोलाइड्स होते हैं, वहां पे क्योंकि इस तरह के जो सोल्स होते हैं, दे आर सॉल्वेंट लविंग, they are solvated by the solvent, or I would like to use dispersion medium rather than solvent.
तो वहां पे डिस्पर्जन मीडियम ने डिस्पर्स फेज को साल्वेट किया होता है, तो इस सूरत में उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ही कम होता है. I would like to say refractive indices between dispersed phase and dispersion medium is very small in the case of hydrophilic colloid. So what happens? Minimum refractive indices leads to the minimum scattering of light, and hence we say that the Tyndall effect is very weak in this particular case. So this is the background support for whatever we are saying about the refractive index in case of Tyndall phenomena. So this was another important point that I tried to highlight. Okay, next we are going to move at another very important section, that is in the form of Tyndall effect. I would like to say that these are the proofs where we observe the Tyndall effect. These are the daily life observations that support the theory of Tyndall effect. Okay, firstly, we have got a lot of example. We have got many examples of the Tyndall effect, but I would like to highlight few ones. Here we have got milk example. Milk is colloid. Yeah, we know that it is colloid. It's composed of plenty of particles, proteins and sugars and the fats, carbohydrates. So unfortunately, these naturally made particles lie in the colloidal range, so hence we call the milk as a colloid. Okay, what happens when a beam of light is directed at the glass of milk? The light is scattered. This is great example of Tyndall effect. Here we can see this example. Bluish color we can see appears when we see the glass under the light. सो यहाँ भी टनल इफेक्ट आप देखते हैं, क्योंकि दूध के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल रेंज में लाई करते हैं. तो दिस इज another very common example we can observe in our daily life and at homes rather than in labs. Okay, this is example of Tyndall effect, although it is not obvious seeing just from this glass, but I'm sure that if we show the complete picture in the form of torch, and after passing the light we will observe the Tyndall effect. Anyway, move on to the other example. This is another beautiful example. We see it in the winter mostly. When a torch is switched on a foggy environment, absolutely, he is talking about the light cars, light torch, sorry. The path of the light becomes visible. In this scenario, the water droplets, the fog, are responsible for the light scattering. In the upper example, we saw that the fats and the sugar particles behaved as a colloidal particle that were dispersed in the water. But here, what we are saying, that the water droplets that are present in the form of fog that lie in the range of colloids. These particles lie in the range of colloids. So in the foggy environment, in the foggy weather, and most importantly at the night, more dominantly at the night, when lights are turned on, we see a path of the light in the form of cone. We can say in the form of cone. The path is illuminated. And who is responsible for this illumination? The fog droplets, the water droplets that lie in the colloidal range are responsible for the formation of this cone type light hue.
Okay, another example of this wonderful phenomena is a kind of opalescent glass that give appearance of blue color when seen from the sides. So it again, uh, I'm exaggerating this, that if you want to observe this phenomena, it is advised you to see from the side view, at the view of 90 degree. That will be more obvious view. uh, you will able to see this. Okay, however, orange color orange colored light emerges when light is shined through the glass. In the absence of light, it appears blue, while in the presence of light, it appears orange. So this is due to this change in color is due to the now we say that Tyndall effect. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. How important and how beautiful example this is, that we usually see in our daily lives. What happens in the forest? Mist contain tiny droplets of the water, which acts as a particles of the collide dispersed in the air. So watch this beautiful picture. How beautiful this looks. uh, ये कह रही है कि जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाएं तो आपको लाइट के पाथ इल्यूमिनेटेड हुए नजर आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रोशनी के रास्ते में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स द वाटर come and they play roles of colloidal particles. It means that they lie in the range between 1 to 1000 nanometers. So this beautiful phenomena is due to the presence of water molecules in the canopy of the dense trees in the forest. How beautiful this is, absolutely beautiful. Okay, I would like to give another example that we see in our daily life that is not mentioned here. Mostly in the winters, and mostly in, because I belong to the rural area, so जब हम सर्दियों में खास तौर पर किचन में जाते हैं तो वहां पे कुछ रोशनी जो है, अगर थोड़ा सा कमरे में अंधेरा हो थोड़ा सा, तो कुछ लाइट रेज जो हैं वो हमारे रोशनदान से इंटर हो रही होती हैं हमारे कमरे में, उस किचन में। तो वहां पे आपको एक लाइट पाथ्स जो हैं वो इल्यूमिनेटेड नजर आते हैं। सो व्हाई दैट हैपन? That is because presence of smoke particle inside our kitchen room. These smoke particle when comes under the light, तो वो फिर लाइट को स्कैटर करते हैं और उसके नतीजे में बड़ी ही खूबसूरत लाइंस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है किचन के रूम में। जरूरी नहीं ये किचन के रूम में ही हो, अगर कहीं पे डस्ट पार्टिकल लाई करते हैं और वो जगह थोड़ी सी जो है वो डार्क है और उसके ऊपर जब आप लाइट शाइन करवाएंगे तो वो भी उसको शो कर देगा, टाइडल इफेक्ट। ओके, now we are going to enter in another very important section. We will highlight few points regarding the this very wonderful phenomena that is known as the Tyndall effect. And now he says, not every scattering of light can be Tyndall effect. कहता है कि हर चीज जो लाइट को स्कैटर करती है वो टैंडल इफेक्ट नहीं हो सकता। क्या बात है, कैसे नहीं हो सकता, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्काई इज ओवरकास्ट, जब बादल बने हों, द सनलाइट पासेस थ्रू द टर्बिड लेयर ऑफ द क्लाउड्स, तो वो जो
बादलों से जब रोशनी पास करती हो, जब वो टर्बिड हो, resulting in scattering and diffused light on the ground, तो उस सूरत में लाइट की स्कैटरिंग होती है। मतलब ये कि जो आपके पास उस क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वो एक्ट कर रहे हैं कोलाइड पार्टिकल्स के तौर पे, और उन्होंने लाइट को रीडायरेक्ट कर दिया है। It is very important to remember that if I would be a teacher, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता कि बेटा आपको टेंडल इफेक्ट बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको लाइट की जो है वो जो लाइट बिल्कुल ऐसे ही पास कर जाती, ट्रांसमिट हो जाती है, लाइट की ट्रांसमिशन और डिस्पर्जन में फर्क करें। तो जब आप लाइट की ट्रांसमिशन और डिस्पर्जन में फर्क करेंगे तो आप हकीकी मानों में सीख पाएंगे कि ये होता क्या है टेंडल इफेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोलाइड्स पार्टिकल्स हैं, और अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें जो अभी हम कर रहे हैं, कि जब क्लाउड से लाइट पास करती है तो दर हकीकत वो पास नहीं करती, वो स्कैटरिंग करती है। कैसे? वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन द क्लाउड्स दैट रीडायरेक्ट लाइट, मतलब ये कि वो पास नहीं करते बल्कि रोशनी को रीडायरेक्ट करते हैं। They may change the frequency of light that fall on these particles. They may change the wavelength. They may change the color. If we are going to say that it is going to be scattering, scattering may change the color of the light, means it may change the frequency of light because absorption is going to be observed. Okay, hopefully I would be right. Okay, so क्या हुआ है कि वहां पे डिफ्यूज्ड लाइट हमें मिली है। एक तो रीडायरेक्शन हुई है लाइट की, और डिफ्यूज्ड मिलनी भी चाहिए क्योंकि आपकी कुछ पार्टिकल्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Okay, this does not exhibit Tyndall scattering. Oh wow, how and why? Because the cloud droplets are larger than the wavelength of light and scatters all colors almost similarly. That is very important. अच्छा, यहाँ पे राइटर ने लिखने की कोशिश की है कि ये टेंडल इफेक्ट नहीं है जो आपके क्लाउड से लाइट पास होकर रीडायरेक्ट हुई है। नो डाउट स्कैटरिंग इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड, बट दिस इज नॉट द टेंडल स्कैटरिंग। तो ये क्या है? क्योंकि उसने कहा है कि वहां पे कंडेंसेशन हो जाती है पार्टिकल्स की, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। वी नो दैट द क्लाउड्स आर कंडेंस्ड एट सम स्टेजेस। सो ये जो कंडेंसेशन हुई है इसने पार्टिकल्स को बड़ा बना दिया है, लेकिन हमने शर्त ये रखी हुई है टेंडल इफेक्ट की कि आपने जो पार्टिकल्स लेने हैं उनका जो साइज होना चाहिए वो लाइट की जो स्ट्राइकिंग लाइट है उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, ना ज्यादा कम होना चाहिए उस पार्टिकल को, कोलाइडल पार्टिकल को, ना ही उसका साइज स्ट्राइकिंग लाइट से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बड़े पार्टिकल भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत छोटे पार्टिकल्स भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इन ऑर्डर टू शो दिस ब्यूटीफुल फिनोमेना इन द फॉर्म ऑफ टेंडल इफेक्ट। सो these larger particles will enable this phenomena not to be counted or included in the Tyndall effect. This is important point that I tried to raise. Okay, moving. Tyndall effect is light scattering by particles in a colloid or in a very fine suspension, also known as Tyndall scattering. This is the thing I am trying to highlight. It is similar to the Rayleigh scattering. Yeah, what is Rayleigh scattering? Rayleigh scattering, in a very simple word, is light is going to fall on a sample, on a particle,
and light is going to be again redirected of the same frequency. सो जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट स्ट्राइक करती है पार्टिकल के ऊपर, उसी फ्रीक्वेंसी से अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तो उसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी सीखते हैं जो इसने लिखा है। ओके, ये कहता है कि इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर लाइट, in that the intensity of scatter light is inversely proportional to the fourth power of wavelength. This is one of the most vital point of my this assignment, my this project. I will try to make you understand that ये बंदा कहता है रेले स्कैटरिंग में ये बात हो रही है कि जो लाइट की स्कैटरिंग होगी, कितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वेवलेंथ है, स्ट्राइकिंग वेवलेंथ है, वो कितनी है। आप जितनी छोटी वेवलेंथ करेंगे, आपकी स्कैटरिंग उतनी ही मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ power of our wavelength that is going to strike our sample. This is a very important point that I'm trying to highlight. अच्छा, अब जितनी ज्यादा छोटी होगी, इसका मतलब ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है ऑलमोस्ट। वैसे इसके बाद वायलेट भी आता है, इंडिगो भी आता है, लेकिन हम नॉर्मली ब्लू की बात करते हैं जिसका कलर ज्यादा होता है आमतौर पर। अच्छा, तो ब्लू जो है इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। इसका मतलब है ब्लू जो है वो ज्यादा स्कैटर होगी एज कंपेयर टू द रेड लाइट विच हैज लार्जर वेवलेंथ। ठीक है, ओके, ये बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, बल्कि बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने टीचर को भेज रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं समझाना चाह रहा था। एन एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ इज द blue color sometimes seen in the smoke emitted by the motorcycles. Yeah, we see it most of the time. The color of the smoke is like bluish color, although it is black sometime, but we see it blue as well. Okay, he says that in particular two-stroke machines where the burnt engine oil provides these particles. जी हमें पता है। Here we can see the example of the fluid suspended in the water appears to be blue because only scatter light reaches the viewers and the blue light scattered by the fluid particles more than the red light. अगर हम आटे का सस्पेंशन या कोलाइड सा बना लें तो हमें वो ब्लू सा नजर आता है और उसकी वजह है टैंडल इफेक्ट। ठीक है जी, अब वो ब्लू कलर क्यों नजर आता है? वो कहता है कि जो ब्लू की स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा होती है बाकी कलर से, तो लाजमी तौर पर अगर ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है फ्लोर के सस्पेंशन से, कोलाइड से, सोल से, तो हमें वो ज्यादा नजर आएगा, डोमिनेंटली कलर नजर आएगा। ओके, अंडर द टैंडल इफेक्ट द लॉन्गर वेवलेंथ are more transmitted while the shorter wavelength are more diffusely reflected via scattering. How important this line is. कह रहा है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होंगी वो ज्यादा ट्रांसमिट हो जाएंगी। ट्रांसमिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो बीच में से गुजर जाए, उसकी हालत पे कोई फर्क ही ना पड़े, जबकि जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगी वो डिफ्यूज हो जाएंगी। डिफ्यूज में कुछ रद्दो बदल हो सकता है, हम कह सकते हैं। और एक और बात वो कहता है कि जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो ना सिर्फ डिफ्यूज होगी बल्कि वो स्कैटर्ड भी होगी, मतलब कि वो फैल जाएगी। और जब कोई चीज फैलती है तो इसका मतलब वो बड़ी होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, the Tyndall effect is seen when the light scattering particulate matter is dispersed in an otherwise light transmitting medium. हाँ जी, हम ऐसे मीडियम में कोलाइड्स पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं जो लाइट ट्रांसमिटिंग हो, अदरवाइज वो जो आपका मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, वो खुद वो फिनोमेना शो करना शुरू कर देगा लाइट को जो है वो डिस्पर्स करने वाला। तो हमें अपने कोलाइड्स में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके ऊपर फोकस करना होता है।
we study the dispersed phase properties rather than dispersion medium at the most of the times. Hope so. ये बात मैं सही कह रहा हूँ. Sometime जी कुछ और भी है. When the diameter of individual particles is in the range of roughly between 40 and 900 nanometer. In very मतलब के मोटे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि 40 से 900 नैनोमीटर. लेकिन जब हम कोलाइडर पार्टिकल्स की रेंज सेट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 to 1000 नैनोमीटर. This is not very strictly followed in the colloid chemistry. Somewhat below or near the wavelength of visible light. So this is another important point about the applicability of Tyndall effect. This writer is trying to say that जो आप Tyndall effect observe करते हैं उसमें जो particles होते हैं उनकी range somewhat comparable to the visible wavelength, उसके करीब करीब रहती है. और हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी नीचे हो जाए पार्टिकल के डायमीटर, कोलाइडल पार्टिकल का डायमीटर थोड़ा कम हो जाए एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, लेकिन ज्यादा कम भी ना हो और ज्यादा बड़ा भी ना हो इसका डायमीटर, तो तब जाके सही मानों में आपको टाइडल इफेक्ट जो है वो शो होगा. ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव गॉट true solutions and suspensions do not show Tyndall effect. This is very simplified statement. Hopefully you all will be familiar from this statement. अच्छा होता क्या है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज 1 to the 1000 नैनोमीटर होती है. तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो पाते हैं और फिर इसे रीडायरेक्ट होने में कामयाब हो पाते हैं. देखें जी, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज रेंज रहता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है. 1 नैनोमीटर जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल साइज. वी आर मच very much familiar from this term 1 nanometer, 1 billionth I think so of the meter. That these particles scattered the light rays. जी, लेकिन जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस पे जाते हैं, तो वहां पे पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, उसको स्टॉप कर पाए और उसको स्कैटर कर पाए. याद रहे कि नैनो पार्टिकल्स जो कि 1 नैनोमीटर से लेस होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट के कलर्स को चेंज कर पाए, लेकिन वो किसी और वजह से हो रही होती है और वहां पे फिनोमेना और हो रहा होता है. वहां पे स्कैटरिंग का जो प्रिंसिपल है वो और हो रहा होता है, वो क्वांटम केमिस्ट्री में चली जाती है जो उनकी एक्सप्लेनेशन है. Anyway, we are restricted to this colloidal particles because my topic is not nanomaterials. Because of the scattering, the path of the light as well as the particles become visible. Yeah, ऐसा ही होता है. You may see in the picture that is being shown here below this writing. Here we can see that colloids are showing the Tyndall effect present in the center, while the true solutions, their particles, because of having very smaller size, are incapable to show this phenomena. But in the case of suspension, we know that the particles range is bit bigger, more than the 1000 nanometers. So these particles, rather than absorbing light, rather than redirecting light, block the light. They are big enough to block the light, and hence when the light will be blocked, there is very less possibility of light to be transmitted or to be redirected. So this is the reason we say that suspensions and colloids are incapable to observe this phenomena. Okay, then we have got how is the Tyndall effect responsible for the blue eye color. This is another important thing related to my assignment. कि आखिर क्या वजह होती है कि कुछ लोगों की जो आईज हैं उनका कलर जो है वो ब्लू होता है, कुछ का ब्लैक होता है और कुछ का
वैसे तो कई रंगों में हमें नजर आती हैं, लेकिन ब्लू, ब्लैक और इस तरह के कलर्स जो हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हैं। अच्छा, ये जो है टेंडल इफेक्ट से ही रिलेटेड है, दैट इज नॉट आउट फ्रॉम द माय कोर्स और माय टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट। The primary difference between blue, brown, and black colored irises is the amount of melanin in one of its layer. देखें जी, आपकी आंख के अंदर, हमारी आंख के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको मिलेनिन कहते हैं। मिलेनिन जो है ये एक पिगमेंट है, दैट इज नेचुरल पिगमेंट, जो कि कलर जो है वो देता है। ये स्किन में भी एग्जिस्ट करता है और आपकी आंखों के अंदर भी, आयरिस के अंदर भी इसकी कंटेंट्स होते हैं। और जितना ज्यादा मिलेनिन होगा आंखों के अंदर, आपका जो आईज कलर है वो ब्लैक और ब्राउन की तरफ शिफ्ट होगा। I repeat that larger the amount of melanin present in our irises, the more black or brown color the eyes will possess. And if the melanin contents are less in our eyes iris, then जो आपकी आंखों का कलर होगा वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो ब्लू कलर की जो लाइट होगी वो हमारी आंखें जो हैं उसको रीडायरेक्ट करेंगी। वजह ये है कि ये जो मिलेनिन होता है ये कलर एब्जॉर्बर होता है, ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगी, जब मिलेनिन कम होगा तो उस सूरत में रीडायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो ब्लू कलर में रेंज में ज्यादा होगी। लेट्स रीड इट बिट। eye color is directly related to the amount and quantities of the melanin in the front of a lid, the iris. People with the brown eyes have large amount of the melanin in their iris, while the people with the blue eyes have much less of this pigment, this melanin. A blue iris in an eye is due to Tyndall scattering. जो आपका आयरिस ब्लू नजर आता है, इन द पिक्चर यू कैन सी द ब्यूटीफुल ब्लू आई, ये होता है कि टेंडल स्कैटरिंग हो रही होती है आपके आयरिस के अंदर। कैसे भला? इन अ ट्रांसलूकेंट लेयर इन द आयरिस, ट्रांसलूकेंट लेयर होती है डिफ्यूज लेयर। ब्राउन एंड ब्लैक आयरिसेस हैव सेम लेयर एक्सेप्ट द मोर मिलेनिन जी। और मिलेनिन जो है ये नेचुरल पिगमेंट है जो कि आपके हेयर, स्किन और आई कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। द मिलेनिन एब्जॉर्ब लाइट, लाइट एब्जॉर्प्शन होती है। इन द एब्सेंस ऑफ मिलेनिन द लेयर इज ट्रांसलूकेंट, मतलब ये है कि वहां से जो लाइट पास हो रही होती है वो डिफ्यूज्ड हो रही होती है, स्कैटर हो रही होती है, ट्रांसलूकेंट हो रही होती है। जब आपके पास मेलानिन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी। द नोटिसेबल पोर्शन ऑफ द लाइट दैट enters ट्रांसलूकेंट लेयर री-इमर्ज विया स्कैटर्ड पाथ जी। जिस तरह मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो स्कैटरिंग होगी। दैट देयर इज ब्लैक बैक स्कैटर, the redirection of the light waves back out into the open airs। हमें कोई भी कलर तभी नजर आता है जब वो इमर्ज हो के सामने आता है, तो फिर वो जो ब्लू कलर है वो इमर्ज हो के हमारी आंखों तक आया है, तभी हमें वो नजर आया। स्कैटरिंग टेक प्लेस टू बी ग्रेटर एक्सटेंट एट द शॉर्टर वेवलेंथ। हाँ, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। देखिए रेड कलर क्यों नहीं नजर आया? अगर स्कैटरिंग हुई है तो रेड कलर इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि हमने ये देखा है कि स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होती है जितनी वेवलेंथ कम होती है स्ट्राइकिंग रेडिएशन की। तो स्ट्राइकिंग रेडिएशन को अगर आप चाह रहे हैं कि वो ज्यादा डिस्पर्स्ड हो, ज्यादा रीडायरेक्ट हो, ज्यादा जो है वो डिस्पर्स हो, तो आप उसकी वेवलेंथ को शॉर्टर करते जाएं, उसकी एनर्जी को बढ़ाते जाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, यू विल सी वेरी re-emergence of light rays. So this is how this happens. Okay, let me check whether this is being okay. Okay, hopefully it will be recorded. Okay,
यहाँ पे वो जो है वो उसकी मैं बात कर रहा था कि जो ब्लू लाइट होगी वो ज्यादा जो है वो रीडायरेक्ट होगी, और वजह ये है कि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है। प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जितनी छोटी वेवलेंथ करते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी जो रीडायरेक्ट हो रही है। तो ये वो वजह है कि जो ब्लू कलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो रेड कलर होता है वो मिनिमम डिस्पर्स्ड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। तो ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल रहेगा कि ये वो वजह रहेगी मिलेनिन और जो आपके पास टेंडल्स इफेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लू आई कलर के लिए। ओके जी। जी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही, शुक्र है। अच्छा, इसके बाद कंपैरिजन विद द रेले स्कैटरिंग। जी, हमने जो टेंडल स्कैटरिंग है उसका कंपैरिजन करना है रेले स्कैटरिंग से। रेले स्कैटरिंग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि रेले स्कैटरिंग में हमें एक ऐसा पार्टिकल रिक्वायर्ड होता है कि जो वेव लेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन है उससे बहुत छोटा हो। जब आप उस पार्टिकल को उस रेंज में ला देंगे जो स्ट्राइकिंग वेवलेंथ से छोटा हो तो वो रेले स्कैटरिंग होगी। ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा है कि फॉर द डिस्पर्जन ऑफ द पार्टिकल टू क्वालिफाई फॉर द रेले फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पार्टिकल साइज नीड टू बी बिलो रफली 40 नैनोमीटर फॉर विजिबल लाइट। अच्छा, आपके जो लाइट पार्टिकल है, सॉरी, जो आपका पार्टिकल जिसने ये स्कैटरिंग करनी है रेले स्कैटरिंग, उसको 40 नैनोमीटर छोटा होना चाहिए आपकी जो लाइट स्ट्राइक आ रही है उससे, तभी जाके ये जो आपकी जो रेले स्कैटरिंग है ये पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो रेले स्कैटरिंग नहीं होगी। या तो वो आपके पास टेंडल स्कैटरिंग हो जाएगी, टेंडल इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा, या माई स्कैटरिंग हो जाएगी। वी विल आल्सो सी माई scattering a little while later. Okay, collider particles are bigger and are in the rough vicinity of the sizes of the wavelength of the light. अच्छा, अब ये तो हमने कह दिया, ये कंडीशन सेट कर दी कि अगर आपका जो पार्टिकल है इसकी जो साइज है ये 40 नैनोमीटर छोटा है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, तो तब जाके ये स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया और उसके पार्टिकल का साइज जो है वो रेंज में आ गया स्ट्राइकिंग वेवलेंथ के, तो तब क्या होगा जी? तब आपके पास जो है वो रेले स्कैटरिंग नहीं होगी बल्कि आपके पास टेंडल इफेक्ट होगा। ये इस पे बात कर चुके हैं जी। ओके, colloidal particles are bigger and are in the rough vicinity of the size of wavelength of the light. Tyndall scattering, i.e. colloidal particle scattering, is much more intense than the Rayleigh scattering due to the bigger size particle involved. G. The importance of the particle size factor for the intensity can be seen in the large exponent and has in the mathematical statement of the intensity of Rayleigh scattering. कह रहा है कि जितना पार्टिकल का साइज बढ़ाते जाएंगे कोलाइडर रेंज में, वो उसकी स्कैटरिंग भी ज्यादा होती जाएगी। एक तो वेवलेंथ की बात की हमने, लाइट की वेवलेंथ छोटी करते जाएं फिर स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, साइज थोड़ा बढ़ाते जाएंगे फिर भी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ऑब्वियसली स्कैटरिंग ज्यादा होगी जब आपके पास पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्फीरॉइड, Tyndall scattering can be mathematically analyzed in terms of my theory. ये भी एक थ्योरी है, स्कैटरिंग थ्योरी है, which admits particles size in the rough vicinity of the visible light. जी, क्योंकि वो visible light की रेंज में आ जाएंगे। Light scattering by particle of the complex shape are described by the T matrix method. अगर स्फीरॉइड पार्टिकल्स हैं तो उनको माई थ्योरी एक्सप्लेन करेगी उनकी स्कैटरिंग को, और अगर पार्टिकल का जो शेप है वो कम्प्लेक्स शेप के मालिक्यूल्स हैं, जरूरी तो नहीं स्फीरॉइड्स हों, तो कम्प्लेक्स शेप को माई थ्योरी नहीं बल्कि टी मैट्रिक्स मेथड एक्सप्लेन करेगा उनकी स्कैटरिंग को। दिस इज मैथमेटिकल वर्क विच इज नॉट इंक्लूडेड इन माई दिस सिंप्लीफाइड असाइनमेंट। ओके,
similar phenomena that are not Tyndall scattering. We were having a comparison between Tyndall scattering and Rayleigh scattering. These are not much different, but they are different. Okay, let's see some another wonderful examples. Hopefully, it would not be boring. When when the day sky is overcast, sunlight passes through the turbid lift the cloud, resulting in the scattered diffuse light on the ground. हमें पता है कि जब बादल हों तो उस सूरत में डिफ्यूज लाइट आ रही होती ग्राउंड पे, ये माई स्कैटरिंग है. एस स्कैटरिंग माई स्कैटरिंग होती. लेट्स सी व्हाट इज माई स्कैटरिंग. माई स्कैटरिंग इज इलास्टिक स्कैटरिंग. ये जो रेले स्कैटरिंग होती है ये भी इलास्टिक स्कैटरिंग ही होती है. तो माई स्कैटरिंग भी इलास्टिक स्कैटरिंग है जिसमें एनर्जी चेंज नहीं होती स्कैटर्ड लाइट की. और अच्छा, the particles have a diameter similar to or larger than the visible than the wavelength of the incident light. आम तौर पर ये होता है कि अगर कंपेरेबल साइजेस हैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के और जो पार्टिकल हैं उनकी वेवलेंथ के, तो उस सूरत में आपके पास टेंडल इफेक्ट होगा. अगर आपने छोटे पार्टिकल कर दिए तो उस सूरत में रेले स्कैटरिंग होगी, और आपने या तो बहुत छोटे पार्टिकल कर दिए या बहुत बड़े पार्टिकल कर दिए तो उस सूरत में ना रेले स्कैटरिंग होगी ना ही टेंडल इफेक्ट होगा, बल्कि उस सूरत में माई स्कैटरिंग होगी. दिस वाज अनदर very interesting point that I try to highlight. Here you can see a picture. The beautiful picture indicates that during the sunny days, when there are clouds, we see the white color of the cloud. Why we observe the white color of the cloud? This is due to the my scattering. माई स्कैटरिंग में क्या होता है खास तौर पे इस एग्जांपल में, क्योंकि जो क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो उस सूरत में क्या होता है जी के पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं ऑल डायरेक्शंस में. क्योंकि सनलाइट जो है ये विजिबल लाइट होती है, तो और वाइट लाइट होती है, इसके पास सारे कलर्स होते हैं, सातों कलर्स होते हैं, तो हर डायरेक्शन में जो है वो वाइट कलर जो है वो स्कैटर होता है, वाइट लाइट स्कैटर होती है सॉरी. तो इसलिए हमें जो क्लाउड्स हैं इसका कलर भी वाइट नजर आता है. इसको थोड़ा सा हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि ये माई स्कैटरिंग है जो क्लाउड लाइट को स्कैटर कर रहे हैं. दिस एग्जिबिट माई स्कैटरिंग इंस्टेड ऑफ टेंडल स्कैटरिंग. बहुत से लोग इसको टेंडल स्कैटरिंग भी बोल रहे होते हैं. इफ यू गूगल द वाइट कलर ऑफ द स्काई, some writer will even say that it is Rayleigh scattering, but this is not Rayleigh scattering in true words, because the particle size in the clouds is not in the range of colloids, so we cannot say that it lie in the colloidal range or exhibit the Tyndall scattering. Because the cloud droplets are larger than the wavelength of the light and scatters all colors approximately equal. ये बात इंपॉर्टेंट है. व्हाइट कलर जो हमें नजर आता है क्योंकि सारे कलर जो होते हैं वो इक्वली स्कैटर हो रहे होते हैं, मतलब व्हाइट लाइट स्कैटर हो रही होती है, इसलिए हमें व्हाइट नजर आता है. When the daytime sky is cloudless, the color of the sky is blue due to the Rayleigh scattering instead of Tyndall scattering. ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमें ब्लू कलर आसमान का नजर आ रहा होता है, that is not Rayleigh, that is not the Tyndall scattering, Tyndall effect. This is Rayleigh scattering. इसको भी हम डिटेल से देखेंगे. फिलहाल Rayleigh scattering, dispersion of electromagnetic radiation by the particle that have radius less than approximately 1/10 of the wavelength of the radiation. ये important definition है Rayleigh scattering की किसी और एंगल से. ये कहता है कि जो पार्टिकल्स है उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 10 टाइम्स छोटा होना चाहिए जो आपके पास लाइट इंसिडेंट कर रही है. अगर आप गौर करें इस बात पे तो आपको शायद क्लू मिलेगा कि जो हम Rayleigh स्कैटरिंग देखते हैं वो तो हम जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट स्ट्राइक करके देख रहे होते, तो वी कैन इमेजिन हाउ टाइनी द इलेक्ट्रॉन्स आर. ठीक है जी, हाउ टाइनी द मॉलिक्यूल्स आर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. So उस सूरत में visible light definitely it has got a bit longer range, 400 to 800 700 nanometer.
that is we can say it is very not very short, it is longer, its wavelength is longer. सो इस सूरत में जो है वो आपके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो रेले स्कैटरिंग की तरफ आएगा जी। अच्छा, यहाँ पे जो है रेले स्कैटरिंग के मतलब बात लिखी गई है कि रेले स्कैटरिंग ज्यादा होगी। किस तरह? आई स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग लाइट। मतलब ये है कि आप वेवलेंथ बढ़ा देंगे, स्ट्राइकिंग वेवलेंथ, स्ट्राइकिंग लाइट की वेवलेंथ, उस सूरत में जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर आप वेवलेंथ कम कर देंगे, छोटी कर देंगे वेवलेंथ, तो उस सूरत में जो आपके पास स्कैटर इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लू कलर नहीं इमिट हो रहा होता, सॉरी स्कैटर हो रहा होता, ये 10 गुना ज्यादा होता है रेड लाइट से, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ये बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू द ब्लू लाइट। एक 400 नैनोमीटर पे होता है ब्लू और दूसरा 700 या 700 प्लस पे होता है। तो ये वो वजह है कि जो है ये काम हो रहा होता है। The angle through which sunlight in the atmosphere is scattered by the molecules of the constituent gases varies inversely to the fourth power of the, hence blue light which is at short wavelength and the visible spectrum will be scattered more strongly than the all width of the light। बात वो